Hello students, today will we discuss about tell me the weather, I will tell the man. ये निराज सिंह चौधरी ने लिखा है. Okay, in this essay Chaudhary has given detailed analysis of the behavior of the English people in their own country and in hot countries. He had visited England in April and was invited by the BBC to give a talk. It was called Now That April's There, this year till the beginning of May. The season was late and there was no spring, so neither the fresh leaves were seen on the trees, nor the sound of the singing birds was heard. The English, like the Indians, are aware of the uncertainties of weather. Indian parents are worried about the weather in England, while the English parents are afraid of snakes and tigers in India. In fact, the people all the world over are anxious to know about the weather of England. So whenever someone writes a letter from England, okay. इस निबंध में चौधरी ने अंग्रेजी लोगों के अपने देश तथा गर्म देशों में व्यवहार का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया है. यह अप्रैल माह में इंग्लैंड गया था और BBC ने उसे एक वार्ता के लिए आमंत्रित किया था. इसे नाउ दैट अप्रैल्स देयर का शीर्षक दिया गया है. इस वर्ष मई के आरंभ के एक मौसम में देरी हो गई थी और बसंत अभी तक नहीं आया था. अतः न तो पेड़ों पर नई पत्तियां दिखाई पड़ रही थी, न ही चिड़ियों के गाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी. भारतीयों की तरह अंग्रेज भी मौसम की अनिश्चितता के प्रति सचेत होते हैं. भारतीय माता पिता इंग्लैंड में मौसम के बारे में चिंतित रहते हैं, जबकि अंग्रेज माता पिता भारत में सांप एवं शेरों से डरते हैं. वास्तव में सारे संसार में लोग इंग्लैंड के मौसम के संबंध में जानने को उत्सुक रहते हैं. अतः जब कभी कोई भी व्यक्ति इंग्लैंड से पत्र लिखता है तो ये आशा की जाती है कि इसमें मौसम का संदर्भ अवश्य ही किया होगा. जैसा चौधरी का बेटा अपने पिता से आशा करता था, इस देश में लोग प्रायः मौसम के संबंध में बात करते देखे जा सकते हैं और इस बारे में वे विदेशियों से भी बात करने में नहीं हिचकिचाते. परंतु वहाँ मौसम में परिवर्तन बहुत शीघ्र हो जाता है. एक बार लेखक बिना अपना ओवरकोट लिए बाहर निकल पड़ा था और एक बार लेखक बिना अपना ओवरकोट के लिए बाहर निकला और अंग्रेज महिला ने उसे चेतावनी दी थी कि दोपहर तक मौसम इतना ठंडा हो गया कि वह लगभग जम गया और स्वयं को गर्म करने के लिए कॉग्नेक की बोतल लेने की सोची. Slowly he became habitual of his changing weather and was not much disturbed even by continuous rain. He tells that one day he had gone to Winchester Forsyth, seeing what the rain spoiled the joy. He had to take shelter in cathedral and the whole surroundings was very serious. The English people always distrust their weather. They ask each other if the weather was good. Once in Long Gallery, he was looking at the articles of Queen Elizabeth and was surprised to see that the umbrella was not there. When he asked about it, he was told that the Queen trusted her luck. But this changing nature of the English weather is actually very enjoyable. They often complain about weather and know that any prophecy about it can be very dangerous. But in India the weather is generally certain, as he had experienced during his stay in Delhi in 2 hot months. There was brown sky and hot wind and dry earth. The bright light of the sun spread anywhere.
The whole family of Chaudhary during those 2 hot months and almost half made. But one day that their servant came running to inform that there were heavy dark clouds and all of them were very happy. देखिए, धीरे धीरे परिवर्तनशील मौसम का आदी हो गया और लगातार बारिश से भी वह परेशान नहीं होता था। वह बताता है कि एक दिन वह नज़ारा देखने के लिए वैनकेस्टर गया, परंतु वर्षा ने सारा आनंद खराब कर दिया। उसे एक कैथेड्रल में शरण लेनी पड़ी और सारा वातावरण गंभीर हो गया। अंग्रेज लोग अपने मौसम पर सदा अविश्वास करते हैं। वे प्राय एक दूसरे से पूछते हैं क्या मौसम अच्छा था। एक बार लॉन्ग गैलरी में क्वीन एलिजाबेथ की कुछ चीज़ें देख रहा था और उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि उसमें छाता नहीं था। जब उसने इस बारे में पूछा तो उसने बताया कि वह अपने भाग्य पर अधिक विश्वास करती थी, परंतु अंग्रेजी मौसम का ये बदलता हुआ मिजाज वास्तव में बहुत आनंददायक है। वे प्रायः मौसम की शिकायत करते हैं और जानते हैं कि इसके बारे में कोई भी भविष्यवाणी बहुत खतरनाक हो सकती है। भारत में मौसम प्राय निश्चित होता है। जिसने 2 माह के समय की में अनुभव किया, उस समय आसमान भूरा गर्म तथा सूखी जमीन थी। सूर्य की चमकदार रोशनी चारों ओर फैली हुई थी। चौधरी का सारा परिवार इन 2 गर्म महीनों में लगभग अर्धविक्षिप्त हो गया था, परंतु एक दिन उनका नौकर यह बताने के लिए भागा हुआ आया कि घने काले बादल छा गए थे और वे सब बहुत प्रसन्न हुए। एक बार उसके बेटे ने मैंडी फिल्स से उससे अंग्रेजी ग्रामीण परिवेश का सुंदर दृश्यों के बारे में लिखा, जहाँ चारों ओर सफ़ेद फूल, घास की पगडंडी तथा सूखी घास की थी। इस पर उसे किपलिंग की द एंड ऑफ द पेज का बड़ा याद था। द ऑथर ऑफ weather and when makes adjustment with it. He enjoyed most perhaps W.H. Davis were wrong not to mention weather when he was telling about things for which a man must have time. He claims to have understood the weather and properly, and to talk about weather was their frequent pastime. The Englishmen love their weather and so they are always happy to face its changes. They adopt so many ways to save themselves from bad weather. Even the children are not disturbed by rainy season and they can be staying outside and enjoying the showers. The Gipsy families rest on his side and animals graze in the fields quite satisfactory. The weather plays a very important part in the formation of thought and personality of the English people. They become habitual of facing the hence patiently both the pleasant and unpleasant quite happily. The weather takes them particular about every minor things like the furniture, okay, the gate and happily jumping frog and running rat out of fear. These things bring great enthusiasm in the life of the Englishman. देखिए, लेखक की अंग्रेजी मौसम की परिवर्तनशीलता बहुत पसंद थी लेखक को। अब जब कोई व्यक्ति एक बार इसमें समन्वय स्थापित कर लेता है तो वह उसका अत्यधिक आनंद लेता है। जब W.H. डेविस ने इन चीज़ों की गिनती की जिनके लिए मनुष्य को समय निकालना चाहिए तो उसमें मौसम का जिक्र नहीं करके उसने बहुत बड़ी गलती की। वह ये दावा करता है कि उसने मौसम के बारे में बहुत अच्छी प्रकार समझ लिया है और मौसम के बारे में बात करना प्राय उसके समय व्यतीत करने का साधन था। अंग्रेज अपने मौसम को बहुत ज़्यादा लव करते थे, अतः वे सदैव इसके परिवर्तन देखकर आनंदित होते हैं और स्वयं को खराब मौसम से बचाने के लिए अन्य तरीकों को अपनाते हैं। बच्चे भी बारिश के मौसम में परेशान नहीं होते, उन्हें बाहर खेलते बौछारों का आनंद लेते हुए देखा जा सकता है। जिप्सी परिवार सड़क के किनारे आराम करते हुए जानवर बिल्कुल संतोषजनक मैदानों में चढ़ते हुए देखे जा सकते हैं। अंग्रेजी लोगों के व्यक्तित्व तथा विचारों के निर्माण में मौसम का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। वे इन परिवर्तनों का सामना करने के आदी हो जाते हैं, चाहे वे अच्छे हों अथवा वो बुरे हों। ओके,
It is their weather that makes them sensitive to minor differences. They become happy in nature, but these qualities are not seen in them when they behave with the people of hot countries. In these places, their happiness disappears and they become very harsh and narrow in their outlook. This is why we often see the English people irritable and oppressive in India, and they forget all the principles of equality. They become mean and degenerate in their everyday life. The English women, called men sahib, and the clergymen are the worst in this field. The women become quarrelsome and the clergyman is strongly religious. Such things are not expected from the man who has been brought up in the English traditions, and this is the influence of weather on them. It contributes a lot to changing their behavior in the tropical countries. Many English officers and clergymen were completely successful. अंग्रेजी लोगों के व्यक्तित्व तथा विचारों के निर्माण में मौसम का बहुत बड़ा योगदान होता है। वे इन परिवर्तनों का सामना करने के आदी हो जाते हैं, चाहे वो अच्छे हों या बुरे। मौसम उन्हें प्रत्येक छोटी से छोटी चीज़, जैसे फर्नीचर, लोहे का गेट, कोसी से चलती हुई मेंढक, डर कर भागता हुआ चूहा जैसे बातों के प्रति भी विशेष ध्यान देते हैं। अंग्रेजों के जीवन में ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण बन जाती है। एक बार जब वह चित्रों के पोस्ट कार्ड खरीद रहा था तो उसके अंग्रेज साथी ने उसे एक विशेष कार्ड खरीदने का सुझाव दिया जिसे वह पसंद नहीं करता था। एक अंग्रेजी लेखक के साथ भी उसका ही ऐसा अनुभव था। अंग्रेज लोग लकड़ी, पत्थर, धातु, शीशे आदि की छोटी छोटी विशेषताओं के प्रति भी विशेष रूप से संवेदनशील होते हैं। गर्म देशों में लोग ये पसंद नहीं करते कि सूर्य की किरणें उनके कमरे में प्रवेश करें। हम इन्हें इसी प्रकार घृणा करते हैं जैसे एक जाति के लोग दूसरे को तथा भारतीय अंग्रेजों को घृणा करते हैं।